स्क्रीन शेयर कर दे। जिन्होंने रीडिंग के लिए वॉलंटियर किया था वो है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उस्ताजा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। हमारा थर्ड लेसन है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का। ये इलस्ट्रेशन है सारे अल्फाबेट्स का। आप देख सकते हैं फर्स्ट है गुन्ना का, फिर है ये टू लिप्स। अच्छा, ये मखरज बता रहे कितने हैं। एक है गुन्ना में एक मखरज, फिर जौफ में एक मखरज, टू लिप्स में शफतान में दो मखरज है, जबान लिसान में 10 मखरज है और हलक में 3 मखरज है। ओके, नेक्स्ट पेज। पढ़े। जी, कैन यू रीड? जी। Different articulation points. The scholars laid out 5 major areas that have within them the different articulation points, which are a total of 17. First, nasal cavity, khayshum, al-khayshum. Second, jaw, empty space in throat and oral cavity, al-jaw. The throat, al-halak. Fourth, the lips, shafat, shaf, shafatun, ash-shafatun. The teeth, al-lisan. The fifth one, the tongue, al-lisan. ओके, तो Classification. 5 मखरज है जिसमें से आर्टिकुलेशन पॉइंट 17 है। Read करें आप इसको. जी पढ़े। Classification of articulation points. Specific articulation points. First, throat. Second, tongue. Third, lips. Approximate articulation points. First is nasal cavity. Second, jaw. That is empty space in throat and oral cavity. जी Types of जी पढ़े। types of articulation points. Articulation points are divided in two parts. First, specific articulation point. First, that is relies on specific place of the areas of the tongue, throat, or lips. Second, approximate articulation points. First point does not rely on specific place of the areas of the tongue, throat, or lips. The approximate articulation point is applied to the lengthened letters that come from the empty space in the mouth and throat. 17 articulation points. Articulation areas are the throat, the tongue, the two lips, the सबक nasal पढ़ा, cavity, 3 बेटे ही नहीं, एक सबक पढ़ा ना the nasal cavity, वो पढ़ा। the empty space in the mouth and throat. एक मिनट। That is called. वही 4 4 कोई बैठा रहे। हाँ। आपका माइक बंद कर दे। 150। जी स्क्रीन शेयर कर दे। Ji. In Arabic, the throat is called as al-halaq, the tongue, al-lisan, the two lips, ash-shafatan, the nasal cavity, al-khayshum, the empty space in the mouth and throat, al-jawf. Number of articulation points. The throat has 3, and number of letters it has 6. The tongue has 10 articulation points, and number of letters 18. The two lips
Shafatan has 2 articulation points and 4 letters. Nasal cavity has 1 articulation point and gunna. The empty space al-jawf has 1 articulation point and 3 lengthened letters. ओके तो यहाँ पर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हमने जो पढ़ा था मुअय्यन और गैर मुअय्यन मखरज वो बता रहे हैं और ये सारे कितने कौन से मखरज में कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है वो बता रहे हैं जो हमने पढ़ लिया था तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे अल-जौफ First, al-jawf. The empty space in the mouth and throat is a space and an articulation point at the same time. Oral cavity plus throat cavity. The 3 mud letters, lengthened letters, originates from this non-specific area. These letters finish with the stopping of the sound that stops with the air. These letters are alif, waw, ya. These 3 mud letters do not have a specific space that they finish at like others do. Instead, these letters finish with the stopping of the sound. The ya with sukoon preceded by a letter with kasra, the waw with sukoon preceded by a letter with dhamma, the alif with a sukoon preceded by a letter with fattah. The word no, the word nuhiha नु contains जी the 3 types of mud. ओके तो जौफ में अलिफ मद वाव मद और या मद आता है और मद को यही कहते हैं जब या साकिना हो और उससे पहले कसरा हो वाव साकिना हो और उससे पहले दम्मा हो और अलिफ साकिन हो और उससे पहले फतहा हो तो मद होता है और ये गैर मुअय्यन मखरज है ओके नेक्स्ट हलक Next, second, al halaq, the throat. There is in the throat 3 articulation points for 6 letters. These 3 areas are adna al halaq, closest part, wasat al halaq, middle part, aqsa al halaq, deepest part. Adna al halaq, closest part has letters Jim, kha, waw, goin. Wasat al halaq, middle part has खा ha, waw, एंड ain. गइन वाव वाव कहाँ है खा वाव एंड दिया है इसमें। गइन अच्छा कॉमा है हाँ वो। गईन वस्तल हलक मिडल पार्ट हैज हा गईन अक्सल हलक डीपेस्ट पार्ट हैज हा एंड हमजा हम्म when you pronounce ha the vocal cords are open when you pronounce hamza the vocal cords are closed the deepest part of the throat aksal halak means the farthest part from the mouth and the closest to the chest from here 2 letters are articulated Hamza and Ha, the middle part of the throat, Wasat al Halak, where 2 letters emerge, Ha Ain, the closest part of the throat, Adna al Halak means the closest to the mouth. From here, 2 letters चेंज मत merge, करो Kha Ain. ओके ओके तो अक्सा सॉरी हलक में 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है एक है अदना अल हलक दूसरा है वसत अल हलक और तीसरा है अक्सा अल हलक और हर आर्टिकुलेशन एरिया से 2 अल्फाबेट्स निकल रहे हैं तो सबसे ऊपर है जो जबान के करीब है वो अदना अल हलक है उधर से आ रहा है गैन खा ये आपका टेस्ट का भी क्वेश्चन था इसमें काफी लोगों ने मिस्टेक भी किए तो अदना अल हलक से गैन और खा आता है फिर बीच का है वसत अल हलक जिससे आइन और हा आता है
और सबसे नीचे का अक्साल हलक है जिससे हमजा हा आता है। ओके, नेक्स्ट पेज। तो ये बता रहे हैं कि जब शुरू में आता है तो ये कैसे दिखते हैं और जब बीच में आता है तो कैसे दिखते हैं। मैसेज भी देखता, फोन भी नहीं उठा रहा। ओके, हम क्या लेके आऊं भी नीचे से। Ghain, Kha are from letters that have tafkhim or from heavy letters. What is tafkhim? This lesson of valorization and attention, tafkhim and tarqiq will be explained in detail later, but now in brief, tafkhim, fattening, thickening. Its applied definition, it is a heaviness that enters the body of a letter so that the mouth is filled with its reverberation echo. The method of making a letter have the characteristic of tafkhim is elevating the posterior tongue to the roof of the mouth, soft palate, creating more space between the roof of the mouth and the bottom of the mouth and focusing the pressure of the letter to the roof of the mouth. First, letters that always have tafkhim. These are the 7 letters in a group. Wa, Qaf, Ta, Ain, Dod, Sod, Ha. These are called the tafkhim letters, heavy letters. There are differences in degrees of tafkhim according to the letters, characteristics, and the strength or weaknesses of these characteristics. The ranking of these letters from the strongest are the stronger due to the adhesion of the tongue to the roof of the mouth in conjunction with the elevation of the tongue. Second point, letters that have tafkhim sometimes and tarqiq other sometimes. A A point is lengthened alif. The alif is known to follow the letter preceding it as to tafkhim or tarqiq. Lam, pronouncing heavy lam of the exalted name of Allah is one of the temporary qualities tafkhim explained in details later inshallah. Ra had 8 cases has 8 cases in which it has tafkhim, 4 cases in which it has tarqiq, and 2 cases that allow either tafkhim or tarqiq. Explain details later inshallah. What is ओके, tarqiq? अपन रहने दें। ओके, तो गैन और खा से हमें ये टॉपिक पर आए हैं कि दोनों गैन और ख हैवी लेटर्स है, तो इसको हैवी पढ़ा जाएगा। तो इसको ब्रीफली यहाँ पर मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इसको मोटा या हैवी पढ़ना तफखीम कहते हैं। और मुंह को हम उसकी आवाज से भर देते हैं। जैसे ख, ग, गईन। और जबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठाते हैं। इससे ये लेटर्स हैवी हो जाते हैं। और हैवी लेटर्स कौन से हैं? 7 हैवी लेटर्स है। खुस, दगतिन, क़िज़। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है आसानी से याद रखने के लिए। फिर ये लेटर्स के लेवल्स है कि सबसे हैवी कौन सा है और कम हैवी कौन सा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये अरेंज किए गए हैं। सबसे हैवी क़ है, उसके बाद ज़ाद, फिर सॉद, फिर ज़ा। एक मिनट यहाँ पर।
फिर वा के बाद ऑफ, गैन और खौ। यहाँ पर थोड़ा रिपीट हो रहा है वो। ओके, द लेटर्स ऑफ तकफीम। हाँ, फिर इनमें 3 एक्सेप्शंस है कुछ लेटर्स का, जो कभी हैवी होते हैं और कभी लाइट होते हैं। हैवी लेटर्स इसमें फर्स्ट है अलिफ, जो जब हैवी लेटर्स के साथ जुड़ा होगा तो वो हैवी होगा, और जब लाइट लेटर्स के साथ जुड़ा होगा तो लाइट होगा। फिर दूसरा है लाम, सिर्फ अल्लाह के नाम के पहले जब फतहा या दम्मा हो तो लाम अल जलाला हैवी होगा, अदरवाइज हमेशा लाइट होगा। और रॉ में तफसील है, उसमें 8 केसेस में हैवी होगा, 4 केसेस में लाइट होगा, और 2 केसेस में दोनों अलाउड है। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि फतहा होगा या दम्मा होगा, या उस पर रॉ पर क्या कहते हैं, साकिन होगा लेकिन उससे पहले फतहा या दम्मा होगा, या रॉ पर साकिन होगा और उससे पहले भी साकिन होगा और उससे पहले फतहा या दम्मा होगा। तो ये सारे आते हैं 6 केसेस ऑफ तखफीम, सॉरी तफखीम। और ऐसे ही 4 केसेस ऑफ तरकीक में आएगा, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इस पर रुकते हैं और तिलावत ले लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आप ये शेयर कर दें कुरान मुसहफ का PDF। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्तादा, जब दाल आएगा तो क्या उस पर कलकला होगा? दाल? दाल साकिन जी, दाल साकिन पर कलकला रहेगा। सारी कंडीशन में? यस। ओके, जज़ाकल्लाह। कलकला के सारे अल्फाबेट्स हर मतलब जभी भी उन पर साकिन आएगा तब उन पर कलकला होगा। और ये 5 अल्फाबेट्स है कुतुब जद। यस, 121। आपको तिलावत करनी है या क्वेश्चन है? जिनको तिलावत करनी है वो हैंड रेस कर ले। जी, 121। जी कहे। और किसी को तिलावत करना है? 145। जी, तिलावत करनी। जी कर ले। वैलुल लिकुल्ली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, अल्लज़ी जमअ मा अल अल्लज़ी। अल्लज़ी नो, अल आपकी जबान आपके दांत को टच करनी चाहिए। अल्लज़ी। अल अल्लज़ी जी। जमअ मालन वअद्ददह, मालौ। यहस मालन वअद्ददह। ओके, यहाँ पर भी अम, इदगाम नाकिस विथ गुन्ना। मालौ वअद्ददा, यहाँ पर 2 काउंट्स तक आप गुन्ना करेंगे। मालन
وعدده जी। يحسب أن ماله أخلده ओके। كلا यहाँ पर لينبذن यहाँ पर कौन सा मद आ रहा है? मालहू अखलदा, मद सिला कुबरा। सिर्फ अगर यहाँ पर मद सिला सुगरा है, लेकिन उसके बाद हमजा भी आ रहा है अखलदा में, तो ये मद सिला कुबरा है। जी जी आगे पढ़े पढ़े। जी पढ़े। कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा वमा पॉ शुड बी हेवी। अल हुतामा। अल हुतमा हम्म। वमा अद्राक मल हुतमा हु आपको लंबा नहीं खींचना। अल हुतामा। अल हुतमा और लास्ट में हा की भी आवाज आनी चाहिए। अल हुतामा। वमा अद्राक मल हुतमा नहीं, माँ लंबा नहीं खींचना। और अदराक, दाल पर कलकला भी आना चाहिए। वमा अदराक मल हुतमा। वमा अद्राक मल हुतमा लास्ट में हा की आवाज। अल हुतमा। अल हुतमा हुतमा हम्म। नारुल्लाहि मुअक़दा नारुल्लाहिल। नारुल्लाहिल मुअक़दा मुक़दा। मुक़दा जी। और रॉ को आप हैवी कर रही है, लेकिन आपको हैवी आपकी जबान से करना है, मतलब पीछे का हिस्सा ऊपर उठा के, ना कि आपके लिप्स को राउंड करके। जैसे आप पढ़ रही है नारुल वो ही, ऐसा लग रहा है कि आप लिप्स को राउंड कर रही है उसको हैवी करने के लिए। नारुल ना वाहिल मुक़दा। नारुल्लाहिल मुअक़दा मुक़दा यहाँ पर मद है। मुक़दा जी। التي التي تطلع على الأفئدة إنما عليهم इन्नहा। sorry إنها عليهم مؤصدة ओके, यहाँ पर في भी م... नून मुशद्ददा है, मीम मुशद्ददा है, तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। إنها عليهم مؤصدة और इन्नहा यहाँ पर भी हा का 2 काउंट्स है। इन्नहा मतलब इस पे आप लंबा खींचेंगी। إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ओके। जज़ाकल्लाह अम, खैर। वही है कि 121। मुझे तिलावत करनी है। जी करें। क्या पढ़ना है? यही पढ़े वैलुल कुल्ली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा लिल्लज़ी जमअ मालन अल्लज़ी। वअद्ददा। अल्लज़ी। الذي جمع مالا وعدده ओके। मालन वअद्ददा। مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده यहाँ كلا पर ओके। لينبذن कल्ला। كلا हुँ। لينبذن في الحطمة
वमा यहाँ पर भी अद्र नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगी। लयुम्बदन्न फिल हुतमा। लयुम्बदन्न फिल हुतमा हम्म वमा अद्राक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा التي تطلع على الأفئدة الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أماد ممددة في عمد ممددة. في أماد في أماد ممددة. Okay, 109. अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही पढ़ूं सूरह हमज़ा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह। ओके, एक मिनट। हमने शिद्दा, तवस्सुत और रखावा में लाम कहाँ आता है? तवस्सुत में आता है। तो चाहे इस पर तशदीद हो, आप इसको ज्यादा नहीं खींचेंगी। वैलुल कुल्ली इतना लंबा नहीं खींचना है, और झटका भी नहीं देना है, बीच का होना चाहिए दोनों का। वैलुल कुल्ली ऐसे। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ओके, وما दाल आपका ذلك लयुम। لينبذن हाँ, لينبذن في الحطمة ओके। وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة should be heavy. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ओके। 1110। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्तादा मुझे सवाल करने हैं। जी, पूछे। एक तो ये यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, तो ये वाव, ये जो हा है ये क्यों खींचेगा? इसमें मद तो कहीं दिख नहीं रहा। हमने मद सिला सुगरा पढ़ा है ना, मद सिला सुगरा एंड मद सिला कुबरा। उसमें जी वो हा जमीर पर आता है ना। जी तो यहाँ पर आपको हा दम्मा हु के बाद छोटा वाव दिख रहा है ना, जी तो उस वजह से आप उसको मद देंगी। जी। और और ये उसके बाद हमजा भी आ रहा है, तो ये मद सिला कुबरा में आ जाएगा। और ये कभी अल्लज़ी कभी निल्लज़ी, क्योंकि छोटा सा नून होता है ना वहाँ पे, तो इसे कैसे कब कब पढ़ना है? जब आप इसको कंटिन्यूअस पढ़ रही हो, जी लुमदत लुमदतिनिल्लज़ी। जी लेकिन अगर आप उसको स्टॉप कर रही हो तो लुमदा, फिर आप उसका अलिफ पढ़ेंगी, अल्लज़ी। ओके। जज़ा लेकिन उस्तादा यहाँ पर अलग से नून नहीं है, तो आप उसको
अलग से नहीं पढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर तनवीन है ना, लुमज़तिल्लज़ी। जी जी, पर जहाँ पर होता है वहाँ ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, जहाँ पर एक्स्ट्रा नून है वहाँ पर आपको पढ़ना होता है वो एक्स्ट्रा नून। जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह उस्ताद खैर। वही की जी। उस्ताद मेरे को होता है कि तजवीद पढ़ने के बाद नाम तक याद ही नहीं रहता है उसमें क्या है, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। डिस्टर्बेंस हो रहा है। कौन एक मिनट। मैं मेरे 118 आप क्वेश्चन कर रही है। नहीं 109। ओके सॉरी, मुझे लगा 10। ओके हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? कि ये तजवीद का जो रहता है ना, तो उसका मतलब कि ये पता रहता है लेकिन कौन किस में है यही भूल जाती हूँ। जैसे कि रिखावा, सिद्धा, ये तवस्सुत है, इसमें हाँ कौन किस में है यही नाम ही नहीं याद रहता है। हाँ, तो फिर अगर आपको नाम याद ना भी हो तो मतलब आपको वो एक तो पहले याद करके ही याद होगा। दूसरी बात, जो शिद्दा के अल्फाबेट्स है वो ऐसे है कि आप उनको अगर आप उनको सही मखरज से अदा कर रही है तो आप उनको लंबा नहीं खींच सकती। फॉर एग्जाम्पल सारे कलकला वाले अल्फाबेट्स शिद्दा में आते हैं, जैसे अक, अब। तो इसको आप लंबा नहीं खींच सकते। अब ऐसे नहीं कर सकते, अक नहीं कर सकते, आवाज नहीं निकलेगी आपकी। फिर हमजा है, तो जैसे यहाँ पर है मुसदा, तो मुसदा आप लंबा नहीं कर सकते। अगर आप मुसदा पढ़ेंगी तो वो आप उसको चेंज कर रही है और उसको मद बना रही है। लेकिन अगर आप उसको हमजा ही पढ़ रही है तो आप उसको लंबा नहीं खींच सकती। और जो तवस्सुत है उनका आपको वो 5 ही अल्फाबेट्स है, उनका आपको ख्याल रखना है। फिर उसके अलावा सारे अल्फाबेट्स आते हैं रखावा में, जैसे सीन, स्वाद, अस, अज, फिर अह। तो ये सारे वो अल्फाबेट्स है जिनको मतलब नेचुरली ही आपको वो लंबा हो सकता है। तो ये एक अगर आप जी चीज समझ जाएंगी तो आपको इसमें आसानी होगी। हाँ, जैसे इसका तो सही है, लेकिन हरूफ असलिया है, हरूफ नतालिया है, ये सब में मतलब कि सिर्फ रूल्स समझ लेने से हो जाएगा, नाम भूल जाने से तो चलेगा क्या? मतलब कि थोड़े टाइम के हाँ लिए याद है। हाँ, वो जब अगर आपकी एप्लीकेशन बराबर हो रही है तो फिर आपको रूल्स के नाम ना भी समझ में आए तो चलेगा, लेकिन आपका क्योंकि एप्लीकेशन सही होना चाहिए। जी सारा, क्योंकि इतने सारे नाम में इतने कंफ्यूजन हो जाते हाँ, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद करना होगा, लेकिन आगे जिंदगी में मतलब आपका सही तरीके से अदा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रूल्स के नाम चाहे आपको याद हो या ना हो। जी सारा, जज़ाकल्लाह ठीक खैर। है, हमारा वही है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो इसी पर हम रुकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।